तुम्हें कई बार मैंने समझाया, मुझसे चीजें खुफिया रखकर तुम ताकतवर नहीं बन सकते, बल्कि बुज़दिल बन जाओगे तुम। देखो, तुम्हारी आंखों में फिर वही खौफ है। माजरत चाहता हूं आका, मगर अपनी दिल बस्तगी के मामले का जिक्र आपसे कैसे कर सकता था मैं? मसला अगर दिल बस्तगी का होता तो मैं कभी तवज्जो नहीं देता इब्राहिम, लेकिन तुम बरसों तक साथ रहे उस खातून के, एक घर भी दिया उसे। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। एक अलग दुनिया बसा ली तुमने अपने लिए, मुझसे भी अलग। मुझसे पोशीदा एक दुनिया बनाई है तुमने। अल्लाह जाने और क्या कुछ पोशीदा है। आका मैं शुक्र करो कि खजीना ने तुमसे अलग होने का फैसला तर्क कर दिया, माफ कर दिया, क्योंकि वो तुमसे एक लाजवाल मोहब्बत में बंधी है। तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, और मैं इब्राहिम, मैं कैसे माफ करूंगा तुम्हें? मेरे आका आपसे मिलने वाली हर चीज के लिए राजी हूं मैं। मैंने तुम्हें दोस्त कहा, भाई कहा। तुमसे सिर्फ एक वफादारी चाही थी मैंने, मुतलक वफादारी। लगता है कि फिर तुम गुरूर के ताबे हो गए। तुम इन सब के अलावा खुद को सुल्तान कहलवाने की क्या वजाहत पेश करोगे? अगर तुम खुद को गुरूर में सूरज की रोशनी समझते हो तो फिर पलट कर देखो रोशनी कहां से आ रही है इब्राहिम। देखो वो तुम्हें कहां से मिल रही है। अफसोस, मैं जब भी मुड़कर देखता हूं तुम्हें हमेशा एक ही दलदल में धंसा हुआ देखता हूं। हर दफा मैंने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस दलदल से निकाला है, लेकिन इस दफा तो मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना इब्राहिम। या तुम खुद इस दलदल से बाहर आओगे, या फिर तुम इसी दलदल में अपनी जान दे दोगे। जा सकते हो तुम। पाशा, पाशा, सुना तलब क्या था आपको? गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं पाशा। कोई बुरी खबर है क्या? खजीना सुल्तान ने मुझे माफ कर दिया, मुझसे अलहदा नहीं हो रही अब। खुदा का शुक्र है। तो फिर ये आपको क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं क्या? खुश हूं, मगर इस खुशी से ज्यादा दुख इस बात का है कि मतरक जी, मैंने ना चाहते हुए भी आका का दिल तोड़ा है। मैंने
آپ کے لیے ایک کمرہ خاص تیار کروایا ہے منیسا محل میں. میرا یقین کریں آپ وہاں پر یہاں سے زیادہ پرسکون رہیں گے. میرا سکون تو تم ہو میرے بیٹے. انشاءاللہ ایک دن اس چھت کے نیچے بھی ہم بہت سی خوشیوں بھرے دن ضرور دیکھیں گے, میرا یقین کرو. مصطفیٰ, میں اب اپنا پوتا گود میں کھلانا چاہتی ہوں. تم سے پہلے جو بھی تخت نشین ہوا وہ شہزادے کا والد تھا. والدہ, آپ سے گزارش ہے اس پر بحث نہ کریں, وقت آنے پر یہ بھی ہو جائے گا. اب وقت آ چکا ہے مصطفیٰ. کل صبح کیا ہو جائے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اب مستقبل تم ہو اس سلطنت کے, سب کی نظریں تم پر جمی ہیں. اپنے بازوؤں میں اپنے بیٹے کو کھلانا تاکہ دوست دشمن جان لے کے تخت نشینی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور سب جان لیں کہ وہ خون تمہارا ہے مصطفیٰ. فدان, میں شہزادے کی حالت سے بہت ڈر رہی ہوں. وہ مجھے پہلے کی طرح نہیں دیکھتے. پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے. میں انہیں بہت خوشی دینا چاہتی ہوں, میری خواہش ہے فدان. ماہدورہ سلطان بھی ایسا ہی چاہتی ہے بالکل. اگر تم شہزادے کے بچے کی ماں بن گئی تو پھر تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. انشاءاللہ یہی چاہتی ہوں میں. فاطمہ خاتون, فرمائیے کہ راز آغا. جن کپڑوں کا کہا تھا وہ سب آ گئے ہیں, میں نے رکھوا دیے ہیں. ٹھیک ہے, لے آتی ہوں. لڑکیوں چلو سب اٹھ جاؤ, تیار ہو جاؤ, سب کو مکتب بھی جانا ہے. معلم انتظار کر رہے ہوں گے. سلطانم, هێشتا نەتزانیوە ئەو خاتوونە کێیە؟ بەداخەوە سوڵتانم, وەکو نهێنی پاراستویانە, بەڵام پێم وایە ئەم خاتوونە لە حەرەم سەرانیە. چۆن؟ جا دەتوانێت لەکوێ بێت؟ وەڵڵاهی بووە بە مەتەڵی تر, لە جێگایەک لە کۆشکی کۆن یان لە کۆشکی شکار لە سەراکان, خوا دەزانێت لەکوێ شاردراوەتەوە. سمڕی, هەموو شوێنێک بگەڕێن, هیچ شوێنێک بەجێ مێڵن. بەدڵنیایەوە کەسێک هەر بینیویەتی یا بیستویەتی. جیسے آپ کا حکم ملکہ. تم یہاں کیا کر رہی ہو گلشا؟ کیا ہوا؟ چہرہ کیوں اتر گیا تمہارا؟ تمہیں دیکھ کر کس کا رنگ سفید نہیں پڑتا ابلیس؟ اپنی موت چاہتی ہو کیا؟ میں شہزادے کی منظور نظر ہوں. تمہارا وہ حال کر دوں گی کہ شہزادے کبھی تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھیں گے. کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ کون ہے وہ خاتون؟ کون سی خاتون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ آقا کی خلوت میں جانے والی خاتون کا پوچھ رہی ہوں تم سے. مجھے نہیں معلوم. بتاؤ مجھے, ورنہ تمہاری کھال اتار دوں گی. اچھا بتاتی ہوں میں. اچھا ہے تمہارے لیے, بتاؤ جلدی. ادھر آؤ. چھوڑ دو, کوئی ہے کیا؟ میری مدد کرو. خاموش ہو جاؤ. گلشا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ بھول گئی میں نے کیا کہا تھا تم دونوں سے؟ عفیفہ خاتون, قسم سے میرا کوئی قصور نہیں ہے, اس نے مجھ پہ حملہ کیا. جھوٹ مت بولو تم. کیسا جھوٹ؟ خاتون کا پوچھ رہی تھی. کون ہے وہ نہیں بتایا تو میری کھال اتارنے کی دھمکی دے رہی تھی. بہت ہو چکا. فاطمہ تم جاؤ. تم تو اپنے آپ سے باہر ہو گئی ہو. آغا اسے اندر لے جاؤ, پاؤں باندھ دو اس کے. اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ حرم سلطان اس کا حساب پوچھیں گے آپ سے. چھوڑو مجھے, چھوڑو. اب تم نے پھر سے کیا کر دیا؟ فاطمہ کو پکڑا تھا, اس سے خاتون کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی. یہ تم سے کس نے کہا تھا گلشا؟ جو بھی سنے گا یہی سمجھے گا کہ میں نے بھیجا تھا تمہیں. میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم سانس بھی نہیں لوگی. ملکہ, میں نے سوچا کہ
तुम मत सोचो गुलशाह, तुम अपनी नाकिस अकल से मत सोचो, अपना हाल देखो जरा। मलिका, माफी चाहती हूँ, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे नजर मत आना, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया खुद को दरवाजे से बाहर पाओगी। अब जाओ मेरे सामने से। निकाल कालफा। फरमाइए मलिका। देखो तुमने मुझे किन के रहमो करम पे छोड़ दिया। गुलशा की फितरत को आप मुझसे बेहतर समझती हैं मलिका। मुझे यकीन है आप इसे मजीद नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगी। तुम्हारी अक्लमंदी मुझे पसंद है, लेकिन जब तुम उसे मेरे लिए इस्तेमाल करती हो उस वक्त। सूरत हाल खराब है पाशा, जंगी साजो सामान एक एक करके जाया हो रहा है। इस तरह तो हम निहत्ते हो जाएंगे। यहीं तक महदूद रहे तो ठीक है पाशा, वरना बगदाद पहुंचने से पहले ही बहुत से सिपाही बीमार होकर हिम्मत हार जाएंगे। ऐसा होना पहले से जाहिर था। महमद चौश, क्या लाए हो? पाया तख्त से आने वाले कुछ कागजात और खतूत हैं रुस्तम आगा। आका के लिए कुछ है क्या? है आगा, सरबराह खजांची अफीफा खातून का खत है। ठीक है, ये मकतूब मुझे दे दो और दूसरे तुम ले जाओ। पाशा मोहतरम, सिपाही बीमारी से निढाल हो रहे हैं वहाँ, जंगी साजो सामान तक तो उठा नहीं पा रहे हैं वो, और एक तुम हो सिकंदर जलेबी के यहाँ बैठकर लुत्फानंदोज हो रहे हो। कैसी लुत्फानंदोजी पाशा? मैंने जरूरी अहकामात दे दिए हैं, कम से कम जानी नुकसान के साथ हम बगदाद पहुंच जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम बगदाद पहुंच सकोगे या नहीं। चलो मेरे साथ। आका, खजीना सुल्तान के हुक्म के मुताबिक आपको हरम के बारे में मालूमात देना चाहती हूँ। आपकी कनीजों में से नादिया खातून ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन यह हादसा एक कत्ल है, ये बात आश्कार है। इसके पीछे कौन है ये साबित नहीं हो सका, लेकिन खजीना सुल्तान के मुताबिक इस हादसे के पीछे पूरम सुल्तान का हाथ है। आका, मुगल होने की माजरत, लेकिन अहम मसला है। कहो। दरअसल मसला सिकंदर जलेबी है। उसने लश्कर को बहिफाजत बगदाद पहुंचाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया, और सिर्फ यही नहीं, जंगी साजो सामान की भारी मिकदार भी जाया हो चुकी है अब तक। इसके अलावा सिपाहियों की हालत खराब है, बीमारी फैल रही है, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं इन वजूहात की बिना पर, अगर आप भी मुनासिब समझे तो, सिकंदर जलेबी को उसके मनसब से बरतरफ कर रहा हूं। सिकंदर जलेबी को बुलाओ। मेरे आका। सिकंदर जलेबी, हमारे लश्कर की जो सूरत हाल है इस पर इब्राहिम पाशा तुम्हें जिम्मेदार समझते हैं। फौरन वजाहत पेश करो। मैं कतन कबूल नहीं करता आका, मैंने जरूरत से ज्यादा इकदाम किए। वैसे इस सूरत हाल के जिम्मेदार इब्राहिम पाशा हैं, क्योंकि शुरू में हमें तबरेज ले जाने वाले पाशा ही थे। आका, जिस वक्त हम आपके पास से रवाना हो रहे थे तब आपने इनको इनके तजुर्बे की बुनियाद पर नकलो हमल की जिम्मेदारी सौंपी थी। हम इनके इक़दामात के तहत नकलो हमल करते रहे और ये नतीजा हासिल हुआ। नुकसान बहुत हो चुका और मजीद का अंदेशा है। सिर्फ यही नहीं, सिकंदर जलेबी के सिपाहियों ने सल्तनत का खजाना लूटने की कोशिश की। वो वाकया निहायत मुबहम है पाशा, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। सिकंदर जलेबी, ये निहायत संगीन जुर्म है। तुम हर वक्त इल्जामात की जद में रहोगे। फौरन से पहले तुम इंसाफ के कटेरे में खड़े हो जाओ ताकि तुम पर लगे हुए ये इल्जामात साफ हो जाए।
فیروزہ خاتون. شہزادی. میں نے سنا ہے کہ حورم تمہیں بہت پسند کرنے لگی ہے. شہزادے کا خیال رکھ رہی ہوں اسی وجہ سے. محتاط رہنا. تمہارے بارے میں جان گئی ہے, چاروں طرف تمہیں تلاش کر رہی ہے. مجھے خبر ہے شہزادی, آپ نے میرے نام کا مکتوب حورم سلطان کو بھیج دیا تھا. یہ بہت ضروری تھا. اسے پڑھوانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک محبت بھرا مکتوب تھا. میں نے پڑھا تھا شہزادی. گلشا خاتون, شہزادے جہانگیر کی طبیعت کافی ناساز ہے. ملکہ نے فیروزہ خاتون کو بلانے کا حکم دیا ہے. کہاں ہے وہ خاتون؟ باغ کی طرف گئی تھی وہ. ٹھیک ہے, میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں. شہزادی, اجازت دے کچھ وقت اور آپ کے ساتھ رہ لوں میں. پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ خاتون. شہزادی, میری وجہ سے کسی اور بے گناہ کی جان جائے میں نہیں چاہتی ہے. جو بھی حقیقت ہے آشکار ہو جائے. میں راضی ہوں. نہیں, ابھی نہیں فیروزہ. آقا کے آنے تک تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا. لیکن اگر تم چاہو تو آقا کو مکتوب بھیجنے میں مدد کر سکتی ہوں تمہاری. میری بھی یہی خواہش ہے. تو پھر تم لکھ کر مجھے دے دینا, لیکن احتیاط کرنا تمہیں کوئی دیکھ نہ لے. آپ فکر نہ کریں. کون ہے وہاں؟ گلشا ہے وہاں. پکڑو اسے جلدی. کہاں رہ گئی یہ فیروزہ؟ ملکہ, ملکہ, گلشا کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے. اللہ کا عذاب ہو اس پر. پھر کیا کر دیا؟ کوئی معلومات نہیں مجھے. میں نے پوچھ گچھ کی تھی لیکن ملکہ کسی کو کچھ معلوم نہیں. یہ خیریت کی علامت نہیں ہے. کیا ہے مسئلہ؟ معلوم کرنا پڑے گا. کچھ دیر پہلے نگار سے سامنا ہوا, میں معلوم کرتی ہوں. وہ یہ کہہ کے چلی گئی. نگار کا الفا کو باہر نکلنے سے منع کیا تھا. خزینہ سلطان ویسے ہی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. اس کی اور کتنی حفاظت کروں میں معلوم نہیں. شہزادی, عفیفہ خاتون, کیا ہوا؟ پکڑی گئی کیا گلشا؟ وہ پکڑی گئی ہے. اسے زندان میں ڈلوا دیا ہے میں نے. کسی کو بتایا تو نہیں آپ نے؟ کسی نے دیکھا یا سنا؟ میرے خیال سے تو نہیں. خوب. اب کیا ہوگا شہزادی؟ کیا جرم عائد ہوگا گلشا پر؟ حورم سلطان ضرور جاننا چاہیں گے. گلشا کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے. دھمکیاں, رشوت, حکم عدولی, کوئی بھی بتا دینا. فیروزہ, اب تم بھی اپنے کمرے پہ جاؤ, حورم کو شک نہ ہو جائے. جیسے آپ کی مرضی شہزادی. عفیفہ خاتون, اس بار محتاط رہنا ہوگا. گلشا کو حورم تک خبر پہنچانے میں رکاوٹ بننا ہے. شہزادی, دروازہ کھولو, کوئی ہے باہر. آغا, کوئی ہے کیا وہاں؟ جلدی کھولو. نگار خاتون, خاموش رہو. کیوں چلا رہی ہو؟ حرم ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے. دیکھتی نہیں ہو میری حالت؟ نکالو مجھے یہاں سے. کیا گستاخی کی ہے تم نے؟ پہلے یہ بتاؤ. قسم سے کوئی گستاخی نہیں کی میں نے. فیروزہ خاتون کو بلانے گئی تھی باغیچے میں. وہاں جا کر دیکھا تو وہ خزینہ سلطان کے ہمراہ تھی. مجھے کچھ شبہ ہوا تو ان کی باتیں سننے لگی. جس خاتون کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمارے بہت ہی قریب ہے. کیا کہہ رہی ہو تم یہ؟
कहीं वो फिरोजा तो नहीं? हाँ वही है। तुम्हें इसका यकीन है? हाँ बिल्कुल, वरना वो मुझे क्यों बंद करते यहाँ? किसी को बता न सको इसलिए बंद कर दिया। मलिका से कहो वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगी। ठीक है, खामोश रहो। किसी को मालूम ना हो कि तुमने मुझे बताया इस बारे में। मलिका को खबर करती हूँ मैं जाकर। निगार खातून, आपको जाना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा सर कट जाएगा। फिक्र न करो तुम, मैं दोबारा आऊंगी। उस वक्त तक खातून का ख्याल रखना। अगर कुछ हुआ तो मुझे खबर कर देना। मलिका, फिरोजा कहाँ थी तुम? बागी से गई थी मलिका। गुलशा को भेजा था, क्या वो नहीं मिले तुम्हें? नहीं, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। जहांगीर रो रहा था तो उसे मेहरमा के पास भेज दिया। तुम भी वहीं चली जाओ। आओ निगार। मलिका, गुलशा से मिलकर आ रही हूँ। जानती हूँ, बताओ उसने क्या किया? ये वही पुरानी गुलशा है, अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के सिवा कोई काम नहीं। शाही बागीचे में खजीना सुल्तान से सामना हुआ था, सलाम किए बगैर गुजर गई। शहजादी को गुस्सा आ गया, फिर जब उसने बदतमीजी से जवाब दिया तो ये खातून कभी अकल से काम नहीं लेती। अगर ऐसा ही है तो उसके जाने से ही कुछ फायदा हो जाए। आपके ज़हन में क्या है मलिका? हसीना सुल्तान से जान छुड़ानी पड़ेगी हमें। मेरे आका इब्राहिम पाशा मुहतरम ने बगदाद शहर की चाबियां फख्र से आपको पेश करने का इस गुलाम को हुक्म फरमाया है। आला अयास पाशा, मेरा फैसला है अलमदार चाउश को इस वारनेक का सूबेदार तैनात करता हूँ। इन्हें खिलत अता की जाए और 50,000 अशरफियां बतौर इनाम दी जाए। जो हुक्म मेरे आका। अलमदार गुलाम को आपने इज्जत बख्शी आका। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे, आपको बहुत सी फतूहात नसीब करे। आमीन। फौरन से बेशतर पायातख्त वापस जाने की जरूरत है। खिजर रईस त्यूनिस में हमारे मुंतजिर है। त्यूनिस पे कब्जा हो चुका है। अगर जमीनी इमदाद ना मिली तो वो ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकते पाशा। ऐसा ही है। शाकलेन हरगिज ये मौका जाया नहीं करेगा। वहां जाने से मुश्किल हो जाएगी। तहमास तबरेज पे दोबारा काबिज हो चुका है। वान की तरफ पेशकदमी कर रहा है। मजबूरन हमें लौटना होगा। ऐसा ही है। एक बच्चे के साथ जंग करने का यही नतीजा होता है तश्जी अली। पाशा मोहतरम, आपने मुझे याद फरमाया। उलमा पाशा, आओ। शायद आपको मालूम नहीं, सिकंदर चलेबी को कल कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं आपकी भी वहां मौजूदगी चाहता हूं। मगर मेरा इससे क्या वास्ता पाशा? कैसे आ सकता हूं मैं वहां? वो ऐसे कि तुम उसके हमरा मेरे खिलाफ साजिश में मुलविस हो, मैं जानता हूं। अगर तुम उसके साथ सजा भुगतना नहीं चाहते तो कल तुम्हें वहां आना होगा और सबके सामने गवाही देनी होगी। समझ गए ना तुम? आला हजरत, ये मैं आपके लिए लाया हूं।
रुस्तम आगा, तुमने देखा इब्राहिम पाशा कैसा खेल खेल रहा है मेरे साथ? उन्हें कल अदालत में देख लेंगे। बिल्कुल हिम्मत ना हारें आप। मुझे यकीन है कि वो अकल से काम लेगा और आपका खोया हुआ वकार आपको वापस लौटाएगा। मेरा नहीं ख्याल। मुझे यहां कैद करवाने वाला इब्राहिम है। मेरा सर कटवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। आका हरगिज उसकी इजाजत नहीं देंगे। रुस्तम आगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर ये काम तुम अपने जिम्मे लोगे। ये फर्ज तुम्हारा है। इस अजीम सुल्तानत को इब्राहिम जैसी मुसीबत से तुम निजात दिलाओगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करता हूं आला हज़रत, अगर आपका खून बहा तो वो खून रायगा नहीं जाएगा। गुलशा, कहाँ रह गई थी तुम? कब यहाँ से मेरी जान छुड़ाओगी तुम? हाँ, खामोश रहो। मुझे भी पकड़वाओगी क्या तुम? हर जतन कर लिया लेकिन नहीं हो सका। खजीना सुल्तान रुकावट बन रही है। उफ अल्लाह, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। फिरोजा का क्या हुआ, बता दिया क्या? कैसे नहीं बताऊंगी उनको? खातून को खुद देख लेंगी मलिका, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ से बचाना है। कुछ देर में तुम्हें लेने के लिए आएगा। कौन आएगा? जल्लाद आएगा। कि तुम क्या कह रही हो? खजीना सुल्तान ने तुम्हारी मौत का परवाना जारी किया है। खामोश रहो, बात सुनो मेरी। इस मौत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। वो क्या है? बताओ जल्दी मुझे। खजीना सुल्तान तुमसे जान छुड़ाए इससे पहले तुम उनसे जान छुड़ा लो। मलिका, अतराफ के सब महलों और शिकार सराय में देख लिया, लेकिन खातून का मालूम नहीं हो सका। पता नहीं वो खातून इंसान है या जिन है। जमीन खोद कर उसके अंदर तो नहीं चलेगी कहीं वो। जरूर किसी जगह पर छुपी बैठी होगी, या शायद हरम से कहीं बाहर गई ही नहीं। अब तक यहीं किसी जगह पर है। मलिका, बेफिक्र नहीं, वो ज्यादा अरसे हमसे छुप नहीं सकेगी। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन एक मसला और भी है मलिका। निगार खातून को आपने एक जिम्मेदारी सौंप दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप उस पर इतना एतमाद कैसे कर सकती हैं मलिका सुल्तान? उस पर एतमाद की बात कहां से आ गई सुंबल? मुझे उसकी जरूरत है, उसको मेरी। उसकी आंखें नहीं देखी क्या? इंतकाम की आग में चल रही है वो। और अगर आपसे भी इंतकाम लेना चाहा तो फिर हसीना सुल्तान का छोड़ा हुआ अधूरा काम हम पूरा करेंगे। पागल हो गई हो क्या? मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? इससे पहले कभी नहीं किया जैसे। खजीना सुल्तान है वो। उन्हें मारने की बात तो छोड़ो, अगर हाथ भी लगाया तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या हुआ, डर गई क्या तुम? तुम क्यों नहीं करती ये? तुमसे करवाने का हुक्म दिया है मलिका ने। जिंदान में कैद खातून पर किसी को भी शक नहीं होगा, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। या तो तुम मरोगी या मार दोगी। ठीक है, पर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? ये दरवाजा रात को खुला मिलेगा तुम्हें। सीढ़ियों के पास जाना, ईंट के पीछे एक खंजर पड़ा मिलेगा तुम्हें। खंजर कैसा? ये सब आखिर इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? पहले उनकी गर्दन दबा देना, फिर उनकी कलाइयां काट देना। सुबह बिस्तर पर मुर्दा मिलेंगी। मालूम ही है, पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी। सबको यकीन आ जाएगा। ठीक है, करोगी ना तुम ये काम?
सिकंदर चलेबी। काजी साहब मोइनुद्दीन ने तुम पर आयद करदा जराइम की फहरिस्त अच्छी तरह पढ़ ली है। आका के एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए ऐसे अहम तरीन सफर में शदीद सर्दी के मौसम में दुश्मन मुल्क में कयाम करने और इस्लामी लश्कर को खतरे में डालने का सबब बने हो तुम सिकंदर चलेबी। इसके अलावा अपने मुकाम का नाजायज फायदा उठाते हुए खजानाए हुमायूं में खुर्द-बुर्द की, रिश्वत लेकर अपने मालो दौलत को बढ़ाया। तो अब देखते हैं तुम खुद अपना दिफा कैसे करते हो। पाशा मोहतरम, आप सब बखूबी जानते हैं कि आज तक मैंने जो भी किया वो सब तुर्क सल्तनत की बका और हमारे अजीम शहंशाह सुल्तान सुलेमान खान की फतह के लिए किया है। मैंने दौरान सफर अपने तमाम फैसलों में जर्रा बराबर भी गलती नहीं की और कतन रिश्वत लेने या देने जैसा संगीन जुर्म नहीं किया कभी। आपने मुझ पर जितने इल्जामात आयद किए हैं वो सब के सब झूठे हैं। मेरे खिलाफ साजिश है ये, हकीकत यही है। मतलब ऐसा है। उलमा पाशा के साथ शाम वारिदात के कातिब अली साहब को बुलवाएं। अब जरा उन्हें भी सुन लेते हैं, देखते हैं कि दर हकीकत तुम ठीक हो या फिर मैं दुरुस्त हूं। उलमा पाशा के साथ शाम वारिदात के कातिब अली साहब। उलमा पाशा, सिकंदर चलीबी पर आयद इल्जामात के मुतालिक आपको मालूम है। आप इसके मुतालिक जो भी जानते हैं बताइए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। सिकंदर चलेबी इस अजीम उस्मानिया सल्तनत के आला उहदेदार और एक अहम शख्सियत हैं। इनकी अंजाम दी हुई खिदमत किसी तारीफ की मोहताज नहीं। मैं भी इनका बहुत एहतराम करता हूँ, मोहतरम है ये। लेकिन इस सफर में रूनुमा होने वाले हादसात का मैं शाहिद हूं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनमें सबसे अहम हादसा किजिलजा डाक पर हमले वाला है। हमें किजिलजा के मुतालिक सब कुछ बताएं। जैसा कि आपको मालूम है, हमें वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा। लश्कर में बदनज़मी फैली। इसका भी सबब यही है। हमें रास्ते भटकाने वाले भी सिकंदर चलेबी ही हैं। इसके अलावा इन्होंने इब्राहिम पाशा का लिखा हुआ एक जाली हुक्मनामा हमें भिजवाया। ये सरासर झूठ है। मैंने किसी के भी नाम से खत नहीं लिखा। वो हुक्मनामा हमारे पास है। असल मोहर से मवाजना करने के बाद इसके नकली होने का सबूत मिल गया है। मुझे क्या मालूम ये काम किसने किया है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। असल में इसकी जरूरत भी नहीं है कोई। मुझे इस अदालत का फैसला मालूम है। आप बहुत पहले ही फैसला कर चुके हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो सिकंदर चलेबी। तौहीन अदालत ही आपको सजा देने के लिए काफी है। आप जिन हकायक को इल्जामात कह रहे हैं, हमारे पास इनके मुस्तनद सबूत मौजूद हैं। हतमी फैसला करने के बाद आपको सजा सुनाई जाएगी। मोहतरम काजी मोइनुद्दीन चलेबी और मोहतरम कादिर चलेबी, मेरे ख्याल में आप अपने फैसले पर पहुंच गए होंगे। जी बिल्कुल पाशा। मेरे आका सिकंदर चलेबी के मुकदमे की समाअत हो गई। काजी मोइनुद्दीन साहब, फौरन मालूमात दें कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया है। मेरे आका, दौरान सफर तबरेज से बगदाद तक होने वाले भारी जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार सिकंदर चलेबी हैं। इसके अलावा रिश्वत की वसूली के जरिए अपने माल में इजाफा और शामी रियासत वारिदत के कातिब नक्काश अली साहब की शहादत के भी जिम्मेदार हैं और ये साबित हो चुका है। इन सारे सबूतों की रोशनी में सरबरा खजांची सिकंदर चलेबी को फांसी लगाकर मौत की सजा देने का और इसका तमाम माल और जर शाही खजाने में जमा करवाना वाजिब है। बाकी हुक्म फरमान हमारे शहंशाह का है।
अफसोस, सद अफसोस। तुम जैसे सल्तनत के काबिल ओहदेदार का क्या यही अंजाम होना था? मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुमने सारे हरबे आजमा लिए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या मिल गया? कुछ नहीं। आका तुम्हारे बारे में अपना फैसला हुक्मनामे में तहरीर कर चुके हैं। तुम्हें सल्तनत से गद्दारी के जुर्म में फांसी मिलने वाली है और मैं अजीम सल्तनत के मामलात निपटाने में मसरूफ रहूंगा। इस दुनिया में नहीं तो दूसरी दुनिया में होगा पाशा। मैं वहां तुम्हारी गर्दन पकड़ूंगा। वैसे भी जल्द ही तुम भी मेरे पास आ जाओगे। यकीनन हम सबको एक दिन मरना है सिकंदर चलेबी, लेकिन मैं एक बावकार सिपाही की मिसाल कायम करके मैदान जंग में अपनी जान दूंगा। इतना यकीन मत रखो पाशा। सुल्तान सलमान भी नहीं जानते कि तुम कहां और कैसे मरोगे। सरबराह खजांची सिकंदर चलेबी पर आयद करदा इल्जामात की बुनियाद पर अदालत में ये बात साबित हो गई है कि लश्कर हुमायूं का तबरेज से बगदाद की तरफ रुख मोड़ने की वजह से होने वाले जानी और माली नुकसान का जिम्मेदार है। कतई तौर पर साबित हो चुका है। इबरत आलम के लिए सबके सामने फांसी की सजा का हुक्म सादिर किया गया है। मेरे आका, अपने हकीर गुलाम को माफ कर दें। कहो रुस्तम। सिकंदर चलेबी जैसे जिनकी बेशुमार खिदमत थी, एक काबिल और तजुर्बाकार। कहना क्या चाहते हो तुम रुस्तम? उसकी हक तलफी हुई है ये तो नहीं कहना चाहते? हरगिज नहीं आका, शरीयत के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उन्हें पसंद करता था। वो इस सल्तनत के बहुत से लोगों की सरपरस्ती करने वाले अहम शख्स थे। बहुत एहसानात है उनके मुझ पर। इस सल्तनत ने कई सिकंदर देखे हैं रुस्तम। असल चीज सल्तनत का इंसाफ है। याद रखना ही बात।
वजीर आजम मोहतरम। रुस्तम आगा, मैं जानता हूं तुम्हें सिकंदर जलेबी की मौत का बहुत अफसोस हुआ है। कल तक जो इंसान सादिक और ताकतवर था वो कैसे गद्दार और मुजरिम बन गया, मैं इस पर बहुत हैरान हूं। आका और मेरे दरमियान आकर साजिश करने वाले का यही अंजाम हुआ करता है। हर एक के लिए व्रत है। मेरे आका, मैं बेगुनाह हूं। क्यों आपने नहीं रोका? बेसबब जुल्म किया मुझ पर। इस गुनाह का अज़ाब आपकी गर्दन पर होगा। पानी दो मुझे। हुक्म आका। पानी दो। इब्राहिम, बढ़कर इब्राहिम, तुम्हारी वजह से एक मासूम का खून कर दिया। दुआ है तुम्हें भी इस जैसी बर्दनाक मौत मिले इब्राहिम।